Assalamu students. Today we are going to start the new topic, that is apoptosis. This is the last topic of the first chapter, apoptosis. इंशाल्लाह आज हमारा भी जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. From the next week we will start a new chapter, that is the cellular inflammation. Now the apoptosis basically is a programmed cell death. What is the meaning of this programmed cell death? That the cell is destined to be died, clear, and that is basically under some plan. It is not a random death of the cell, as we have seen in the pathological condition. I have told you in the necrosis there is some problem, pathological problem in the cell that ultimately leads to the death of the cell. Then there is the disruption of the cell membrane, and then ultimately the cell is dissolved, or it is taken up by the macrophages and removed from that site. Similarly, in the apoptosis, there is also it is the death of the cell, but this is a very planned death, and this is usually beneficial for the body. The normally necrosis के अंदर मैंने आपको बताया था, the death is not beneficial for the body, but it is because the cell has undergone some pathological condition, environment is changed, the cell have to cope the changed environment. It is unable to cope the environment, then ultimately is injured, and after the injury, ultimately reversible or irreversible injury, and then the death and the necrosis. And the whole process, the cell do not want to die, but here it is different from the normal cell death. This is a programmed cell death which is beneficial for the body, that is always beneficial for the body. Apoptosis, clear है क्या इसके अंदर? बेसिकली सेल जो है समटाइम्स सेल सुसाइड इटसेल्फ, खुदकुशी कर लेते हैं. दिस इज द सुसाइड ऑफ द सेल फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द बॉडी. बॉडी के बेनिफिट के लिए अल्टीमेटली सेल क्या करता है? सुसाइड करता है, सो दैट देयर इज द ओवरऑल बेनिफिशियल effect of that death to the body. वो अगर नहीं होगी तो ultimately the cell which is present at that site could be dangerous for the body as a whole. Therefore cell delayed itself. This is called the apoptosis. कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? बेसिकली सेल डेथ जो है, जो नॉर्मल इंजर्ड सेल के अंदर और प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर क्या फ़र्क है? ये हमेशा बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगी, और ये बेसिकली जो है जो एक्टिवेट हो गया, देयर इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच दिस एपोप्टोसिस इज एक्टिवेटेड. वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन से मैकेनिज्म हैं व्हिच अल्टीमेटली एक्टिवेट दिस एपोप्टोसिस. पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, व्हिच आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड व्हिच आर द पैथोलॉजिकल कंडीशन इन व्हिच दिस एपोप्टोसिस टेक्स प्लेस. पहले अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल, there are different conditions in the body in which the apoptosis takes place. Physiological normal condition के अंदर the embryogenesis is a very good example of apoptosis. जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जो फीटस की ग्रोथ हो रही होती है इन द वूम ऑफ द मदर, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होती है ऑन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. क्लियर? जिस तरह से एक बढ़ाई है जो मिट्टी के मुख्तलिफ चीज़ें मूर्तियाँ बनाता है, वो मिट्टी का एक बहुत बड़ा जो है ब्लॉक लेता है, मिट्टी का बहुत को इकट्ठा करते हैं, चिकनी मिट्टी को, और उसके अंदर से फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके वो निकालता है और अल्टीमेटली एक स्कल्पचर बनाना शुरू कर देते हैं. वो जो मिट्टी निकाल रहा होता है बेसिकली बॉडी के अंदर भी बेसिक वो जो मैकेनिज्म है, दैट इज द एपोप्टोसिस. दस ऑर्गन इज डेवलपिंग, क्लियर, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन some area of that organ has to be removed. ठीक है? The removal of that area which is not required to give the shape to the organ is basically by the help of the apoptosis. एक organ अपनी shape को maintain करता है, एक shape को एक बनाता है by the process of apoptosis. पहले वो randomly बहुत सारी cells की collection थी, लेकिन उस collections के अंदर से organs बनना शुरू हुए. ठीक है? जब ऑर्गन्स बनेंगे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं उसमें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें रिमूव होंगी, सो दैट एक अल्टीमेटली फाइनल स्ट्रक्चर बन पाएगा. So that process is dependent upon the apoptosis, and that is very beneficial for the ultimately formation of the body. अगर ये process नहीं होगा, if the apoptosis is no more there, ultimately body जो है वो structures नहीं बना पाएगी.
क्लियर। जिस तरह से एक स्कल्पचर बनाने वाला बंदा मिट्टी को इकट्ठा करता है और उसके बाद उसमें से मिट्टी थोड़ी थोड़ी से जो है वो रिमूव करता जाता है और अल्टीमेटली स्कल्पचर बना लेते हैं, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी ऑर्गन जो है इसी तरह से डेवलप होते हैं कि वो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और अल्टीमेटली कुछ उसमें से सेल्स डिलीट होते हैं, कुछ ऐड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस। एक तो ये एग्जांपल होगी। नाउ देन द हार्मोनल effect या hormonal effects. Different organs in our body are dependent upon the hormones for their normal functioning. अगर वो hormones नहीं होंगे तो ultimately जो है वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो hormones हैं जो basically उनको stimulate कर रहे हैं. These hormones are basically stimulating the cells to either remain in the proliferating phase or to become a mature form. ठीक है, उसकी जो डिपेंडेंसी है सेल की आर ऑन द हार्मोन्स। लाइक अगर आप बात करो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्लियर, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। Similarly, in the females, the cycle of the females is dependent upon the progesterone or estrogen hormones, basically which is produced in the ovaries. If the ovary is removed in the female or if the testes are removed in the male, the organs basically which are dependent upon these hormones, like females, uterus in the females and prostate in the males, they become atrophied, they ultimately become apoptosed. Clear? Because those cells are dependent upon the hormones which are produced in a specific organ. वो अगर hormones उनको मिलते रहेंगे तो वो organ जो है वो multiply भी करेंगे, वो अपने functions को maintain भी रखेंगे और वो एक proliferative phase में रहेंगे। अगर hormone नहीं आएगा ultimately cells जो हैं वो static हो जाएंगे, because they are proliferative cells, तो they feel कि we are no more required. When they feel that they are no more required, they ultimately undergo the process of apoptosis. ये होता कैसे है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं कि जिससे अल्टीमेटली एपोप्टोसिस होती है। क्लियर? सिमिलरली lymphocytes, especially the B lymphocytes, if the B lymphocytes are not being exposed to some antigen, they undergo a process of apoptosis. Normally क्या होता है कि lymphocytes are produced in the bone marrow, then the B lymphocyte goes to the lymph nodes and they wait there for the antigenic stimulation. वो एंटीजन का वेट करते हैं lymph nodes में जाके. when they do not exposed to any antigen, कोई एंटीजन अगर आके नहीं लगता, they wait for some time, for some days, and if there is no antigen that has stimulated the lymphocytes, then the process of apoptosis goes on in them and ultimately cell died. Clear? They died because they are not being utilized. When they feel that I am not being utilized, I have no benefit for the body, then they are removed. Clear? Similarly, there are some autolytic lymphocytes which are produced when they are when the cells are being made in the bone marrow. Those autoreactive cells which can react to the normal antigen of the body, they also undergo the process of apoptosis. Similarly, the cells which have performed their functions ultimately also undergoes apoptosis, like neutrophils. Neutrophils जो हैं, normally the life of the neutrophil is from 4 to 8 hours. जब वो बोन मैरो से निकलते हैं, when they come out of the bone marrow, they start circulating in the bone marrow and they come across some infection. Then they basically what they do, they release their granules at the site of the infection. जहाँ पे इन्फेक्शन थी, बैक्टीरिया थे, वहाँ पे अपनी ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं. when all the granules are released, now they have no more granules in them. अब उनके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं है. वो जो उनका हथियार था, जो उनका वेपन था, that is being utilized. when the weapon is being utilized, तो ऐसा हथियार जिसके अंदर आपके पास जो है गोलियां नहीं होंगी तो वो फंक्शनलेस होगा. तो सिमिलरली when the neutrophils feels कि all my granules are being utilized, I have no use, no function to perform, they undergo the process of apoptosis, so that they are died, they made a suicide. Ultimately they are removed from the point. These are all the example of a physiological mechanism. Now there are also the example of pathological. When the cells
got mutated, when the DNA of the cell is mutated, then there is chances that that mutated cell can ultimately form an abnormal cell, and that abnormal cell can lead to a formation of a tumor or the cancer. एक सेल था, ठीक है, वो प्रोलिफरेटिव सेल था, वो जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की फेज में है. तो अब उसके अंदर ड्यू टू सम रीजन देयर अकर्स अ म्यूटेशन इन द डीएनए. वो म्यूटेशन क्यों हो रही है? देयर आर मल्टीपल रीजन ऑफ द म्यूटेशन. वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वो रेडिएशन की वजह से हो सकती है, क्लियर, वो किसी केमिकल की एक्सपोजर की वजह से हो सकती है. वट एवर द कॉज इज, if it undergoes the mutation, DNA undergoes the mutation, then there is a chance that cell ultimately divide and form a mutated DNA. That mutated DNA form an abnormal function, and then ultimately if it keep on dividing, it can form a structure which is abnormal, which is called the tumor, cancer. Clear? Therefore those cells which have got the abnormal DNA, they undergo a process of apoptosis, so that a single cell which ultimately can lead to the formation of a whole tumor can be suppressed at a very early stage. एक सेल की स्टेज के ऊपर उसको रिमूव कर दिया जाए. वो किस तरह से रिमूव होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस. सेल जो है अपने आप को जो है डेथ कॉज कर लेते हैं, अपने आप की सुसाइड कर लेते हैं, सो दैट कि ये बॉडी के लिए ओवरऑल नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है. इसी तरीके से एक तो डीएनए की म्यूटेशन, misfolded proteins. If the ultimate product of the DNA is to form the protein, if the abnormal protein is formed, ultimately that can also cause the abnormality in the body. क्लियर? वो एबनॉर्मल प्रोटीन बना के बॉडी को जो है, एबनॉर्मल प्रोटीन का मतलब है कि वो द एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी. तो ऐसे सेल्स विच स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल प्रोटीन और द मिसफोल्डेड प्रोटीन, दे आल्सो, these cells also do the suicide or the apoptosis. Clear? Similarly, infections, very important. The cells which are infected by any virus or the bacteria feels that the cell is the bacteria or the virus is multiplying inside of me. Ultimately they are acquiring my energy, they are taking my energy. Clear? वो मेरी एनर्जी ले रहे हैं. सेल एक्वायर सोचता, ये देखता है कि अब मेरे अंदर बैक्टीरिया आ गया या मेरे अंदर वायरस आ गया. नाउ दैट बैक्टीरिया एंड वायरस इज यूटिलाइजिंग माय एनर्जी एंड इज डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली. क्लियर? अब वो तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा. अल्टीमेटली स्टेज एक आएगी कि जब वो बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देंगे और द सेल में इज अनएबल टू होल्ड ऑल द डिवाइडेड बैक्टीरिया और द डिवाइडेड वायरसेस. अल्टीमेटली मेरी मेम्ब्रेन बस्ट करेगी और ये वायरस या बैक्टीरिया रिलीज करेंगे और मेरे नियर बाय सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे. तो सेल पहले ही ये डिसाइड कर लेता है कि माय फेट इज अल्टीमेटली द डेथ. सो व्हाई नॉट कि मैं पहले ही अपनी एपोप्टोसिस के जरिए से पहले ही सुसाइड कर लूँ, सो दैट ऑल माय एनर्जीज विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द वायरसेस और बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई, उनको होल्ड किया जा सके, उनको रुका जा सके. तो अल्टीमेटली क्या करता है सेल अपने आप की सुसाइड कर लेता है, सो दैट कि अब वायरस और बैक्टीरिया जो अंदर थे वो अंदर ही खत्म हो जाए. इसके साथ ही जब वो सुसाइड करेगा, जिस तरह सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, खुद को तो मारते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को औरों को भी मार देते हैं. तो सिमिलरली सेल जब अपनी डेथ कॉज करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो उसके आसपास में होते हैं, क्योंकि वो एंजाइम्स कुछ एक्टिवेट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं. वो एंजाइम भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया और द वायरसेस और वट एवर इज इनसाइड ऑफ द सेल. So these are the pathological examples by which cell do the suicide and ultimately helps the body overall so that the problem could be halted. उसको रोका जा सके, उसे कम किया जा सके, उसे फैलने से मिनिमाइज उसके इफेक्ट हो. Clear? Now this is the physiological and the pathological examples of the apoptosis. तो ये हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली होता कैसे है, किस तरह से एक्टिवेट होते हैं. This is the mechanism of the apoptosis. Mechanism. There are two mechanisms by which the apoptosis in the body takes place. One is the intrinsic and the other is the extrinsic way. Intrinsic and the extrinsic. This is the cell. This is the mitochondria. Yeah. Inside of the cell, in all the cells, there are presence of the very important enzyme caspases.
इनिशियली ये प्रोकैस्पेसिस की फॉर्म के अंदर जो है हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर द प्रोकैस्पेसिस। प्रोकैस्पेसिस बेसिकली आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बट दे आर इन एन इनर्ट फॉर्म। ये प्रोकैस्पेसिस से अगर कैस्पेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोकैस्पेसिस से कैस्पेसिस से कन्वर्ट हो जाएगा तो दे बिकम एन एक्टिव फॉर्म, एंड व्हेन दे आर बिकम एन एक्टिव फॉर्म देन दे आर इन द पोजीशन टू अटैक द न्यूक्लियस, also to attack the other organelles of the cell and cause the death of the cell। ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि हर सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन ये किस फॉर्म में, इनर्ट फॉर्म में। इनको एक्टिवेट करने के लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं, दो मैकेनिज्म्स हैं, देयर आर टू मैकेनिज्म्स बाय व्हिच दीस सेल्स आर एक्टिवेटेड। वन इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड अदर इज वन इज द इंट्रिंसिक पाथवे, अदर इज द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि सेल अंदर से जो है वो डिसाइड कर रहा है, बाहर का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, अंदर से डिसाइड कर रहा है कि मैंने एक्टिवेट होना है और मैंने अल्टीमेटली सुसाइड करनी है। क्लियर? इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इज द बीसीएल प्रोटीन्स। दिस बीसीएल प्रोटीन बेसिकली असेस एनी एबनॉर्मेलिटी इनसाइड ऑफ द सेल। अगर कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है, अगर कोई डीएनए डैमेज हो गया है, क्लियर, अंदर अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है, कुछ भी फैक्टर है जो कि अंदर से कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है सेल के अंदर, तो ये जो बीसीएल प्रोटीन है दे गॉट एक्टिवेटेड। क्लियर? दे गॉट एक्टिवेटेड एंड व्हाट दे डू, दे अल्टीमेटली सेंड द सिग्नल्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया। This is the mitochondria. They send the signals to the mitochondria and the mitochondria releases cytochrome C. This cytochrome C basically acts on the procaspases and converts these procaspases into caspases. और ये caspases जो हैं क्या करते हैं, they are the group of the different enzymes. क्लियर? ये कैस्पेसिस क्या है, these are the group of the enzyme जिसके अंदर एंडोन्यूक्लियसेस भी हैं जो कि आपके पास डीएनए को अटैक करेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स को अटैक करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात याद रखो, इन द होल प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। This is the difference between the necrosis and the apoptosis. In the apoptosis, the cell membrane, the outer line of the cell is maintained, it is not removed, it is not damaged, so that के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। क्लियर? जबकि नेक्रोसिस के अंदर आपको मैंने बताया था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली देयर इज अ होल इन द सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज, तो अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या हुआ, द कैस्पेजेस अटैक द न्यूक्लियस एंड ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। क्लियर? उसे कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। दे आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए व्हिच आर स्कैटर्ड इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाएंगे, बट द आउटर साइड ऑफ द सेल, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नॉट डैमेज्ड। बेसिकली इट इज समहाउ ऑल्टर्ड। इसमें थोड़े से ब्लब्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्लब्स। और ये थोड़ी सी मेम्ब्रेन ऑल्टर्ड हो जाती है, लेकिन ये इंटैक्ट रहती है और ये इट इज नॉट बीइंग कंप्लीटली डैमेज, इट इज इंटैक्ट। अब क्या होगा, अल्टीमेटली ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कैस्पेसेस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, और अब जो सेल है मेम्ब्रेन के ऊपर इसमें थोड़े से एजेस बन जाते हैं, तो दे बिकम बेसिकली टारगेट ऑफ द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सेंस दैट सेल हैज डाइड, क्लियर, दैट सेल हैज टू बी रिमूव फ्रॉम दैट साइट, तो वो मैक्रोफेजेस वहां पे पहुंचते हैं, और वो बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नॉर्मल उसके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का वो चेंज हुआ, उसमें प्रोटीन जो है वो बेसिकली मिसफोल्डेड हुई, उसके अंदर प्रोटीन्स कुछ बाहर आई कुछ अंदर आई, लेकिन मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, तो दैट बिकम द टारगेट ऑफ द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेसिकली रिमूव द सेल फ्रॉम दैट साइड एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व द सेल, द सेल इज डिलीटेड फ्रॉम दैट साइड। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंट्रिंसिक पाथवे टेक्स प्लेस इन द बॉडी। There is also the extrinsic pathway। extrinsic pathway का मतलब है कि बाहर से ऑर्डर आया। क्लियर? बाहर से ऑर्डर आया जिसकी वजह से सेल अल्टीमेटली जो है उसने सुसाइड किया। बाहर से क्या क्या ऑर्डर आ सकते हैं? There are on all the cells of our body there are death receptors on the surface। हमारे हर बॉडी के सेल के ऊपर क्या मौजूद है? डेथ रिसेप्टर्स। डेथ रिसेप्टर्स के ऊपर जब कभी कोई दो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो आके लगेंगे तो ये डेथ रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है? वो कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? एक टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, TNF जिसको हम कहते हैं, और FAS लाइगेंड है, FES लाइगेंड है। ठीक है?
ये अगर आके यहाँ पे लगेगा, ठीक है, डेथ रिसेप्टर के ऊपर, तो डेथ रिसेप्टर पे जब लगेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा कि प्रोकैस्पेसिस को सिग्नल भेजेगा अंदर से कि दे कन्वर्ट इनटू द कैस्पेसिस। वहाँ पे साइटोक्रोम सी पे डिपेंडेंट था, साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ, उसने प्रोकैस्पेसिस को कैस्पेसिस में कन्वर्ट किया। बट इन दिस केस व्हेन द डेथ लिगैंड is attached to the death receptors on the surface of the cell, क्या हुआ, now the inside of the cell procaspases are activated and they are converted into caspases, और जब वो caspases में convert होंगे तो वही process जो पहले हुआ था, they attack the cell nucleus, they attack the cell organelles and the cell is basically died from within। क्लियर, वो जो जो कुछ बना रहा था, वो प्रोटीन्स बना रहा था, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके अंदर जो है सब कुछ जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, दीज कैस्पेजेस जिसके अंदर ग्रुप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दे अटैक द सेल मेम्ब्रेन, दे अटैक द सेल एंड अल्टीमेटली कॉज द डेथ ऑफ द सेल। अब इस तरीके से ये बाहर से ऑर्डर आया और सेल ने अपने आप को इस तरह से डेथ कॉज कर दी। क्लियर, तो इस तरीके से ये सेल जो है वो रिमूव हो जाता है। जो इस तरह के सेल हैं जो एपोप्टोटिक सेल्स होते हैं, बेसिकली दे आर श्रंकन, छोटे साइज में हो जाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, अंदर छोटे छोटे से फ्रेगमेंटेड आपको जो है एपोप्टोटिक बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास इस तरह से छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स आपको सेल के अंदर नजर आते हैं एंड देयर इज नो ऑर्गेनेल। और अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप को देखो तो सेल में इओसिनोफिलिया बढ़ जाता है। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइवा में भी पूछा जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, दैट इज इन्फ्लेमेशन। उसमें इन्फ्लेमेशन में टाइप्स डिफरेंट हैं, वो कैसे होती है, एक्यूट में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह से वो होती है। नाउ वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह।